मोदी जी को हराने के लिए किसी हद तक जा रहे हो और मोदी को हराने के लिए आप कांग्रेस और करप्ट से भी हाथ मिला रहे हो, दैट इज द थिंग दैट पीपल डोंट फील कंफर्टेबल विद। आप उन बच्चों के हाथ में जिनको आपने शिक्षा देने की बात करी थी, एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं। यू थिंक सो कि कोई भी माँ जिसने अपने बच्चे के हाथ में शराब की बोतलें देखी होगी वो दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को वोट डालने की बात करेंगे? ये 2% दो चीजें हों, एक गैरत और एक ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं रह सकता। वो तो अरविंद केजरीवाल तो जलील करते हैं अपने लोगों को, बेइज्जत करते हैं अपने लोगों को। कांग्रेस वो बीमारी है जिसने श्री अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया, ये वो कांग्रेस है। कांग्रेस सिखों के 8000 बेगुनाह सिखों को 1984 में मरवाने वाली कांग्रेस है। गांधी परिवार किसी भी सूरत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उनका एक ही सपना है कि हमारा बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए। राहुल गांधी जी का सपना नहीं पूरा हो सकता, कभी नहीं हो सकेगा। मोदी जी ने आकर कहा ये देश अकबर बाबर का नहीं, ये देश औरंगजेब का नहीं, ये देश गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का है। मेजॉरिटी ऑफ सिख्स आर विद बीजेपी एंड दे वोट फॉर बीजेपी एंड दे इंश्योर कि उनके बूथ से चाहे दूसरी कम्युनिटी के लोग हों वो भी बीजेपी को वोट डालें। गांधी परिवार से पूछो, कांग्रेस से पूछो, जो बड़े नेता बेचारे उनको खुश करने में लगे हैं। राहुल गांधी नौजवान है, नौजवान को मौका मिलना चाहिए। नौजवान, अरे यार 55 साल का आदमी नौजवान होता है, उसने शादी नहीं की तो क्या देश के लोगों का कसूर है? Hello and welcome to another episode of the Statesman Talk with me, Deepti J. Verma. Today we are being joined by Manjinder Singh Sirsa ji, who is the National Secretary of BJP and the former President of Delhi Gurdwara Committee. Thank you for joining us, Sirsa ji. Thank you. Let's start with the election mood. What are the BJP's prospects in Delhi, according to you? See, as far as Lok Sabha elections are concerned, I believe that not just will be winning all 7 seats, but with a huge margin. Reason being this, last election also in 2019, we won 7 seats and the least margin was, the least vote we got was 52%. Okay. So this time we'll be adding another 4 to 5% votes. And altogether, the highest vote turn we got is 56 point something in West Delhi. So what I believe is that on every seat average we will get more than 55% votes. And this coalition of Aam Aadmi Party and Congress, you don't think them coming together will be a formidable opponent for you? Not at all. For reason being, so though these both parties have got a different kind of a vote bank, okay, and most of the people feel cheated now. The person who came in power with one slogan कि शीला दीक्षित करप्ट है, the person who came with the one slogan कि शीला दीक्षित ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, may it be a rape case in Delhi or may it be a corruption in Delhi, whatsoever was there, it was a simple thing for Arvind Kejriwal to say कि सबके लिए जिम्मेवार शीला दीक्षित है। Saying कि जी सोनिया गांधी को जेल में डाल दूं, अगर मैं होता तो अब तक जेल में डाल चुका होता। And now coming together with them and saying कि अब ये दूध धुले हो गए, I don't think the people of Delhi are so fool. They know that Arvind Kejriwal is the person who has cheated the people of Delhi, for the reason being, speaking against the Congress, getting those votes which were against the Congress, and now coming with the Congress and saying कि अब ये ठीक हो गया है, you should vote for us. And especially one thing which hurts Delhi is, I think the most important thing is, people feel कि आप मोदी जी को हराने के लिए किसी हद तक जा रहे हो और मोदी को हराने के लिए आप कांग्रेस और करप्ट से भी हाथ मिला रहे हो। That is the thing that people don't feel comfortable with. That's the reason that they will, I personally feel that we are getting another 3-4% vote just for the reason being because Congress and Aam Aadmi Party has aligned. And Mr. Arvind Kejriwal, because he's now out on bail and he's been giving really flammable speeches and so you don't think that factor will play? That will never matter, for reason being, he is the Chief Minister of Delhi. So why is he has been arrested for which case? For a liquor scam. And what was the liquor scam? The liquor scam was कि आप उन बच्चों के हाथ में जिनको आपने शिक्षा देने की बात करी थी, एक शराब की बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हैं। You think so कि कोई भी माँ जिसने अपने बच्चे के हाथ में शराब की बोतलें देखी होगी वो दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को वोट डालने की बात करेंगे? A chief minister of Delhi has been arrested who has a majority of 63 MLAs out of 70 in Delhi. Yeah. And day is arrested. Not even 100 people reach there before outside his residence. Presumably, if every MLA had got just 1,000 people from his constituency, there would have been 63,000 people outside Arvind Kejriwal protesting.
Yeah. And presumably, if half of that, even 500 people, if each ML would have taken 500 people with him, then it would be 35,000 people outside there. And even if 100 people they have taken with them, it could have been 7,000 people. And there was not even 70 people outside its residence. And when he came out from jail, you say, he said, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, क्रांतिकारी कमिंग आउट ऑफ जेल, और वहां पे 100 लोग उसको लेने ना जाएं, उसके एमएलए तक ना जाएं उसको लेने के लिए. एंड देन ही क्लेम्स कि मैं कल 11 बजे जब मंदिर पहुंचूंगा, हनुमान मंदिर, वहां पूरी दिल्ली पहुंचेगी. वहां 40 लोग नहीं पहुंचे. अब वो द फर्स्ट डे उसका रोड शो था, उसके रोड शो में 500 लोग नहीं थे. आफ्टर ऑल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. क्यों नहीं थे? लोग समझ रहे हैं इज द ओनली चीफ मिनिस्टर जिसको 2 तारीख को वापस जेल में जाना है. अब लोग, मीडिया के लोग चलाएंगे उसको बेल मिल गई. नहीं, उसको बेल नहीं मिली. उसको चुनाव करने का एक मौका कोर्ट ने दिया है. कैसे दिया है? जैसे विक्रम सिंह मजीठिया को जो ड्रग केस में अरेस्ट हुआ था, उसको भी 15 दिन चुनाव करने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. आई मस्ट रिमाइंड यू. एंड सेम इट हैपेंड विद मिस्टर उपाध्याय, जो मालेगांव ब्लास्ट केस के अंदर 2008 में अरेस्ट हुआ था, उसको भी 15 दिन का चुनाव के अंदर प्रचार करने का मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. अरविंद केजरीवाल उन सबसे अलग नहीं है. ही इज वन ऑफ देम. ड्रग केस वाले के साथ, आतंकियों के साथ जैसे व्यवहार करती है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे शराब घोटाले वाले के साथ उन्होंने व्यवहार किया है. अब सोचिए देश के अंदर कब ऐसा मौका आया व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेज कि 2 तारीख को आपको जेल में जाना होगा. क्यों जाना होगा? क्योंकि आपने हजारों करोड़ शराब घोटाले में कमाया. सो दैट इज द रीजन पीपल ऑफ दिल्ली न्यू कि अरविंद केजरीवाल को सिंपैथी छोड़िए, जेल से बाहर आने के बाद जो 2 वोट डलनी थी वो भी नहीं डलेंगी. And PM Modi's claim of this Abki Baar 400 Par, do you think it's a possibility, or you think the mood is unpredictable? First of all, I think media is not reading correctly. पहले भी 400 ही हैं, अब उसको पार करना है. ऐसा नहीं है कि हिमालयन टास्क है कोई. It is just like crossing a boundary of one district to another district. It's just that small task. Otherwise भी हम 270 के आसपास, 370 के आसपास तो हम पहले ही थे अलायंस को मिलाकर. और हमारे पास 30-40 ऐसे लोग थे, पार्टीज के थे, जो हमें वैसे भी सपोर्ट करते थे. अदरवाइज भी वी वर ऑल टुगेदर वी वर ऑलरेडी 400. अब हमारा अलायंस 400 को पार करे तो उसके लिए 5-10 सीटें तो ऐड ऑन होनी है. कोई हरकुलिस टास्क नहीं है ये. पहले आपको समझाना चाहता हूं. मैं आपको स्टेट वाइज बताता हूं. अब आप बताइए हम कौन से स्टेट में से हार सकते हैं? हम उत्तर प्रदेश में से जब मायावती जी और अखिलेश जी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब वो हमसे केवल 17 सीटें छीन पाए. हम 63 सीटें उनसे ले गए. अब तो दोनों रूलिंग पार्टी, एक 5 साल पहले रूल करके गई, एक उससे 5 साल पहले करके गई. आप सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक इकट्ठा हुआ था. अब वो स्प्लिट करके लड़ रहा है. तो हमारा मानना है कि हम मिनिमम से मिनिमम, मार्क माई वर्ड्स, मिनिमम से मिनिमम हम 10 सीटें इस बार फालतू जीतेंगे. वी विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ 73 सीट्स. We might get 75 also, and we might get more than that also. हम 2-3 सीटें इन 4-5 स्टेटों में कम हो सकते हैं. हरियाणा हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, हम हो सकता है 2-3 सीटें कम हो जाएं कहीं से इन 3-4 स्टेट में से, क्योंकि एक आधा कैंडिडेट कहीं से हार भी सकता है. लेकिन अगर हम इन 400-500 स्टेटों में से मिला के अगर 3-4 सीट कहीं से कम हो भी जाएंगे, टोटल 4-5 स्टेटों में से हम 10 सीट तो यूपी से अकेला बढ़ रहे हैं. So you'll make up for it then. No, we will not just more make than, up. More We than get make more up. than that. Yeah. We are winning at least more than 10 seats from Odisha itself. हम 10-12 सीटें फालतू जीत रहे हैं तेलंगाना से. तेलंगाना में हम इस बार कम से कम 14 सीटें जीत कर जाएंगे. हम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं. 10-12 सीटें फालतू वहां से जीत के जाएंगे. हम 303 पर थे. हम अगर इन्हीं स्टेट्स को देख लें, अगर बाकी स्टेट्स को भी आप भूल जाइए, तो भी हम 350 का मार्क पार कर जाएंगे. हम अकेले भी 370 के आसपास पहुंच जाएंगे. Coming to Punjab and the politics of Punjab, you are a known Sikh leader and you speak for the community. What is the sentiment right now for the Modi government and the BJP government in the community? There are 2 different sentiments. One sentiment is those who are pro-Congress and has been pro-Congress from last 70 years, in spite of attack on Shri Darbar Sahib, in spite the demolition of Shri Akal Takht Sahib, in spite the killings of thousands of people in Punjab, 1984. in spite the killings of 1984 carnage in Delhi and other states, they have been voting for Congress. There are people in Punjab.
Why is that? So why is that? Yeah. Just for the sake Loyalty of power. अच्छा, sake of power. It is just a power hungry people who have been with Congress. In spite of seeing कि हमारा दरबार साहब के ऊपर हमला हो जाए तोप टैंकों से. So those people, when we will speak to them, what they'll say, they will give you kind of a narrative कि आप मोदी विरोधी है जी, ये मोदी विरोधी है जी सिखों का. He is the only person in last 75 years. मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बात बताना चाहता हूं. आपने 75 साल में सारे प्राइम मिनिस्टर मिला लीजिए, ये सारे 14 प्राइम मिनिस्टर मिलाकर भी उतने बार गुरुद्वारे नहीं गए होंगे जितनी बार मोदी जी गए. मनमोहन सिंह जी को ऐड कर लीजिए, 10 साल वो हमारे सिख प्रधानमंत्री रहे हैं. ये वो प्रधानमंत्री है, हमें कांग्रेस ने स्कूलों के अंदर औरंगजेब, अकबर और बाबर का इतिहास पढ़ाया जो हमारे कातिल थे. मोदी जी ने आकर कहा ये देश अकबर बाबर का नहीं, ये देश औरंगजेब का नहीं, ये देश गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी का है. आज देश के बच्चों को किताबें किसकी पढ़ाई जाती हैं? इतिहास पढ़ाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का, इतिहास पढ़ाया जाता है बाबा बंदा सिंह बहादुर का, इतिहास पढ़ाया जाता है बाबा बघेल सिंह जी का, और इतिहास पढ़ाया जाता है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे थे जिनको नीहों में चिन्ह दिया गया था, जिंदा उनको शहीद किया गया था. कल्पना करके देखिए, सिख के लिए कितने फख्र की बात है कि मलयालम, ओडियन, बंगाली, त्रिपुरा में रहने वाला, मेघालय में रहने वाला इतना सा बच्चा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का नाम जान रहा है आज, और हमें दूर से देखकर कह रहा है मैंने इनका इतिहास पढ़ा है, ये बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के वारिस हैं. आपने कभी कल्पना की थी एक कांग्रेस जो तोप और टैंक लेकर जाती है दरबार साहब को गिराने के लिए, श्री अकाल तख्त साहब को गिरा देती है, और एक मोदी जो अपने एयरफोर्स के जहाज अफगानिस्तान में भेजता है सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी और सिखों को लेने के लिए. तो मोदी जी ने जो सिखों के लिए किया है, मैंने आपको एक 2 लाइनें ब्रीफ में बताई हैं. इसलिए कांग्रेस एक कातलों की कांग्रेस है. कांग्रेस वो बीमारी है जिसने श्री अकाल तख्त साहब को गिराने का काम किया, ये वो कांग्रेस है. कांग्रेस सिखों के 8000 बेगुनाह सिखों को 1984 में मरवाने वाली कांग्रेस है. कांग्रेस पंजाब के 20 सालों में 1 लाख, आप शायद मेरी आंकड़े को ध्यान से सुने, आपको लगेगा मैंने क्या बोल दिया. कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने पंजाब में आतंकवाद के नाम पर 1 लाख नौजवानों को मरवाने वाली कांग्रेस है. कभी कोई सिख वोट डाल सकता है? इसलिए मोदी जी के खिलाफ जो नैरेटिव पेश किया जाता है, ये कांग्रेस के वो चंद लोग हैं जो हमेशा से ही सिख विरोधी रहे हैं, ये नैरेटिव पेश किया. You think they could have handled the farmers' protest better? Yes, they should have. They let it go on too long. It is not they let it go on. इसको तो इमीडिएटली खत्म करना चाहिए था. It is not about too long. I feel कि उस वक्त भी मोदी जी के बीच में और फार्मर्स के बीच में जो अकाली दल को रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया. पहले अकाली दल उस फार्मर लॉज के सपोर्ट में बोलता रहा. जब उनको लगा कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, बजाय इसको किसको हैंडल करते पीएम के साथ बैठ के, उन्होंने सोचा अब इसके विरोध को होने दो, कम से कम विरोध वालों के साथ हम खड़े हो जाएंगे तो मैसेज आएगा कि हम आपके हैं. मुझे लगता है कि वो मिस हैंडलिंग जो हुई है वो बहुत बड़ा रोल, मिस हैंडलिंग और मिस कम्युनिकेशन बोथ हैं, पर उसमें बहुत बड़ा रोल अकाली दल का है. जो रोल उनको अदा करना चाहिए था, पॉजिटिव रोल, वो उन्होंने अदा नहीं किया, और उसका खमियाजा आज वो पंजाब में वो भी भुगत रहे हैं. What about foreign players in this? देखिए, फॉरेन में भी हमारे 90% सिख ये जानते हैं कि मोदी जी ने किया है. यही कारण है जब फॉरेन में प्रोटेस्ट होता है ना, जब 1984 के बाद प्रोटेस्ट होते थे तो एक प्रोटेस्ट में 1 लाख आदमी लंदन में पहुंच जाता था. मैं आपको हिस्टोरिकल वो वीडियोस देखना, अमेरिका के अंदर 80-80 हजार लाख आदमी प्रोटेस्ट में जाता था. उन लोगों ने ही 1984 के कत्लेआम का इंसाफ लेने की बात करी थी. तब तो कोई देश में बोल भी नहीं पाता था. अब वो चंद लोग जो शरारती लोग हैं, जिनका मकसद भारत को तोड़ना है, केवल वही जो हैं वो तो कभी भी हमें अच्छा नहीं मानेंगे. उनका पर्पस ही डिफरेंट है. जो एक सिख, साधारण सिख है, वो मोदी जी के साथ है, चाहे विदेश की बात हो. हाँ, कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जिनको एक्चुअल में भी गलत कम्युनिकेट किया गया, उनके दिमाग में गलत चीजें भरी गई हैं, वो उस इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं जबकि उनको रियल पिक्चर इंडिया की नहीं पता. You organized a rally recently for the Legacy rally for. Yes, I have been organizing it. It's not my first rally. Okay. मैं पिछले biker rally. Bike rally was just a couple of days back. How was that received? See, मैंने तो लोगों को वीडियो डालकर कहा था कि हम मोदी जी के हक में बोलना चाहते हैं. 1500 बाइकर्स पहुंच के. हमने परमिशन कितनी ली थी?
आप अपनी मेरी परमिशन डालिएगा जरूर अपने इसमें पॉडकास्ट में। हमने 70 लोगों की परमिशन ली थी। 1500 people reached. आर परमिशन वाज जस्ट फॉर 70 पीपल। Okay. आप चेक कर लीजिएगा। हमें ये था कि 70 लोग हैं, हमने कहा है तो 100 लोग आ जाएंगे। हम एक 1500 लोग खड़े हो गए। ये जोश था जिसको कहिए मेरे को भी जाना है। अरे मोदी जी ने ये कुछ किया, हम क्यों नहीं जाएंगे? मोदी जी ने ये कुछ किया, हम क्यों नहीं जाएंगे? अब सब लोग खड़े होने लगे तो 1500 लोगों का ह्यूज। इसी तरह मैंने अभी 15 दिन पहले कुछ लोगों से बात की, मेरे गुरुद्वारा के जो सिंह सभाएं हैं उनके ऑफिस बेरर से, उनके प्रेसिडेंट से, कि यार आप लोग सपोर्ट किसकी करना चाहते हो? तो दे सेड मोदी जी की। तो आई सेड देन व्हाई डोंट यू जॉइन? Clear on that. तो आई सेड नो, आई सेड व्हाई डोंट यू जॉइन फॉर बीजेपी? दे सेड वी आर विलिंग टू जॉइन। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात और की, फिर 2-4 से। द करंट आई सीन, अच्छा मैंने कहा ठीक है। सो वी ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइनिंग इन द नेशनल ऑफिस ऑफ बीजेपी विच इज अ हॉल जिसमें 1500 कुर्सी लगती हैं, और वहां पे 1500 दिल्ली की सिंह सभाओं के ऑफिस बीडर्स और अलग अलग पहुंचे। और उन्होंने नड्डा जी को जब पता चला तो नड्डा जी सेड मैं भी आ रहा हूं प्रोग्राम में। उनका यार इतनी ह्यूज पब्लिक जो है दिल्ली में ज्वाइन करने को आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है वो सच नहीं है। majority of Sikhs are with BJP and they'll vote for BJP and they'll ensure कि उनके बूथ से चाहे दूसरी कम्युनिटी के लोग हों वो भी बीजेपी को वोट डालें। What about this thing that happened with Miss Swati Maliwal recently? Do you have any idea what exactly transpired? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की एक मानसिकता है लोगों को पिटवाने की। वो पहली बार नहीं पिटवाया। It's happened before? हाँ, उन्होंने बहुत लोगों को पिटवाया, चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया, उन्होंने अपने एमएलए को पिटवाया। उनके एक राज्यसभा के एमपी ने मुझे बहुत देर पहले बताया था कि सभी एमएलए में एक एमएलए को कहते हैं गधा है, इस गधे को बाहर निकालो, मारो इसके कान पे चपेड़े। उस एमएलए को सबके बीच में पिटवाया। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे नेताओं को कुछ गलतफहमी होती है, उनको भी है। उनको ये गलतफहमी थी कि मैं कुछ भी करूंगा ना दिल्ली के लोग मुझे देवता ही मानेंगे। तो स्वाति मालीवाल क्योंकि पिछले दिनों से अरविंद केजरीवाल जी की सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? शराब घोटाले के पैसे के लेन देन जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल जी के चंद नजदीकी दोस्तों के बीच में हुआ है। सब पार्टी के लोग उसमें चीटेड फील करते हैं जब उनको जवाब देना पड़ता है कि ये चोर क्यों है, ये बेईमान क्यों है, ये क्यों। तो स्वाति मालीवाल भी उनमें से एक हैं। आपने देखा अमेरिका गए, उन्होंने एक आधी बार इनके हक में नहीं बोले। शराब घोटाले के में अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई भी नहीं खड़ा हो पा रहा क्योंकि सबको पता है ये ब्लैक एंड व्हाइट केस है। और वो लोगों ने ये पर्दे खोले हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर रोज खाना खाते थे, जो अरविंद केजरीवाल जिनके जन्मदिन मनाने जाते थे। तो स्वाति अभी जब मिलने आई तो उनका वैभव जो उनका पीए है, वैभव जो भी उनका नाम है, तो उसने अरविंद केजरीवाल जी ने इस गुस्से में कि इसने मेरी सपोर्ट क्यों नहीं की, मैं गलत था, ठीक था, सपोर्ट करनी चाहिए थी, उनको पिटवाया। अब आप सोचिए मुख्यमंत्री के घर में एक औरत को पीटा जा रहा है। और मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है, बजाय कि वैभव पे कार्रवाई होती, कल जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सो स्वाति मालीवाल को उसमें से बाहर निकाल दिया गया। You think there's a chance she'll join the BJP? नहीं, मैं तो कैसे कह सकता हूँ, ये तो स्वाति मालीवाल बता सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई भी इंसान जिसके अंदर 1% ईमानदारी हो और 1% गैरत हो, ये 2% दो चीजें हों, एक गैरत और एक ईमानदारी, वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ नहीं रह सकता। वो तो अरविंद केजरीवाल तो जलील करते हैं अपने लोगों को, बेइज्जत करते हैं अपने लोगों को। Coming back to Punjab for a second, why do you think it's such an important state for India and any government that will come in the center? Why, Punjab cannot be ignored at all? Absolutely, you are very right here. Punjab could not be ignored and should not be ignored in both sense, I must say. Reason being, Punjab is a border state. And the people of Punjab, they might have a less vote in this country. But the importance they enjoy throughout the world. Throughout the world. You cannot match that. No community, not just Indians, no community in the world enjoys that importance which Sikhs enjoy throughout the world. The diaspora has a power. And that power that they can put any government down there. International pressure they can create. They can create such kind of pressure in their state, in their country. And for that reason being, and secondly, it is in the national interest also. This state is producing the maximum food for this country. They are warriors. They have been protecting this country. And they are fighting like anything. If you remember a couple of months back, when there was a conflict at China border,
if you remember that gentleman, his name was, actually I don't remember his name now. Anyways, this single gentleman fought with his hand and has killed 13 Chinese soldiers. 13. देश के लिए मरना का जज्बा है इनमें, एक जुनून है कि we can die for our country. They are a passionate race. मतलब such passion you can't find anywhere. Yeah. So for that reason, no government, no party should ever ignore Punjab. Yeah, or take it lightly. And no government tries to take them lightly, and that is the reason the Prime Minister has such a passion for the people of Punjab or a Sikh community. And I must say that our government is not ignoring them. I must say that our government is not taking community as lightly, or a Punjab lightly, or a voter lightly. I must tell you one short example on Sikhism. A couple of days back, I got a call from Prime Minister office that आपको हजूर साहब नंदेड़ जाना है और वहाँ के एक सिखों से भी बातचीत करो. तो मैंने इनको आगे से जवाब दिया कि सर यहाँ पे तो वोट ही 1200-1500 वोट है, नंदेड़ साहब नाम है क्योंकि वहाँ हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ पे रहे हैं और हमारा तख्त भी है, लेकिन वहाँ को बहुत सिख वोट नहीं है. तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए एक मैसेज दिया है कि कम्युनिटी में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि अगर हम कहीं पे हम अगर हम 1500 हैं तो प्रधानमंत्री को हमारी जरूरत नहीं है. कहीं से 100 वोटर भी हैं, आपको उनसे भी संपर्क बनाकर उनको भी ये मैसेज देना है कि पीएम वांट्स यू आल्सो, आपकी भी हमें उतनी ही जरूरत है. तो ये पैशन है प्राइम मिनिस्टर के मन में कम्युनिटी के बारे. अब देखिए कल प्राइम मिनिस्टर साहब पटना गए, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पटना में कितने सिख हैं. ओके. पटना में कुल मात्र 1500 परिवार हैं और बिहार के अंदर हमारी कुल वोट जो है वो 4000 है पूरे बिहार में. बट ही एड्रेस द सिख्स देयर. नहीं, वहां पे उन्होंने 3 घंटे रहे गुरुद्वारे में. गुरुद्वारे में आए, गुरुद्वारे वालों ने कहा कि देखिए पटना साहब गुरुद्वारा साहब है, इस पे तो आपको दस्तार प्रॉपर बांध कर जाना चाहिए, ऐसे सिर्फ ढक के तो आप जाते ही हैं. उन्होंने कहा बिल्कुल बांधो. तो उन्होंने दस्तार बंधवाई. गुरुद्वारा वालों ने कहा कि लंगर बताया, तो उन्होंने कहा मैं भी लंगर में सेवा करना चाहता हूँ. फिर उन्होंने परंपरा से वाकिफ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जब मत्था टेकने गए तो उन्होंने कहा ये तो पीछे कंठपट साहब के भोग पड़ रहे हैं, तो मैं भी चौर साहब की सेवा करना चाहता हूँ. तो वहाँ आप देखिए वो चौर साहब की सेवा कर रहे हैं, ये सर्विंग लंगर पब्लिक के साथ बैठे हैं. ये प्राइम मिनिस्टर के मन में जो पैशन है ना कम्युनिटी का, ये नहीं है. उनको लगता है कि जो गुरु तेग बहादुर जी के साथ, गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ हमारी सरकारों ने जस्टिफाई नहीं किया, उनको उनकी जो जानकारी दुनिया तक जानी चाहिए थी, हमारी सरकार ने बेईमानी की है उसमें. उनके मन में ये पैशन है कि जो साहिबजादे हैं उनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए. मेरा देश 2047 में विकसित भारत होगा अगर हमारे देश के बच्चों को गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चों का इतिहास पढ़ा होगा, उनके अंदर एक अलग भावना होगी. सो दैट इज द पैशन विच आवर प्राइम मिनिस्टर कैरीज फॉर सिख एंड सिख रिलीजन एंड सिख गुरुज. इसलिए मुझे लगता है कि पंजाब को कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने इग्नोर नहीं किया, ना सिखों को इग्नोर किया. एंड व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ ऑफ पंजाब? देखिए, मैं खास तौर पर क्योंकि आपके पॉडकास्ट में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं स्टेट्समैन के इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को जरूर एक बात कहना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू से इट इन पंजाबी आल्सो. हाँ जी, प्लीज. कि देखो, पंजाब ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਗਿਆ. 1980 ਦੇ 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤੌਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So Congress especially or any opposition party has maybe helped in this narrative or the public have that Modi government is anti-Sikh or Mr. Modi is anti-Sikh. In your personal capacity of your interaction with him, how has that perception changed for you personally? See, first of all, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत पहले से नहीं जानता था. I had an interaction with him when I joined BJP. I had a phone call with him before joining BJP. Very interesting thing I would tell you. So it was Prime Minister's birthday
आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। मैंने उनके एक सेक्रेटरी को उनको विशेष भेजी और अपना वॉइस मैसेज भेजा कि आपको प्रधानमंत्री जी, मैं भी गुरुद्वारा कमेटी का मैं अध्यक्ष होने के नाते आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अरदास करता हूँ परमात्मा। एंड यू नो, मतलब यू सी दिस जेंटलमैन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग उसको कैसे समझेंगे और उसमें क्या क्या। What year is this? This is 2001. Okay. This 2001. And I got a call from a secretary that PM wants to speak to you. मैं वो चक्कर रह गया, ना मेरा को वास्ता, ना मेरा को लेना, ना मैंने कभी बात की इससे पहले प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री जी मुझे फ़ोन करते हैं और सिरसा जी क्या हाल चाल है। मैंने कहा सर बहुत इससे अच्छे हाल चाल क्या हो सकते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे बात कर रहा हूँ। कह रहे मैंने बोल दिया था कि इनको आप मेरी बात करा देना सिरसा जी की 12 बजे से पहले, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और बधाई। एक लाइन जो उन्होंने बोली, मुझे लगता है कि मैं उस दिन प्रधानमंत्री को समझा कि यार इस आदमी को समझना हमारी कम्युनिटी बहुत मिसअंडरस्टैंड कर। तो मैंने उनको बधाई दी, मैंने कहा परमात्मा आप पे अरे सिरसा जी, ये गुरु तेग बहादुर जी की मेरे पे कृपा है। मैं आपको बताऊं, दैट ही टोल्ड मी, मैं आपको बताऊं, मैं आपको पता है पंजाब में कितनी सेवा की है। मुझे मौका मिला पंजाब में प्रभारी के रूप में। मैं फतेहगढ़ साहब जब बैठा तब मुझे एक बार महसूस हुआ कि ये भारत के लोगों को केवल और केवल गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का इतिहास ही अगर पढ़ा दो तो दुनिया में उनको किसी इतिहास पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं उस दिन समझा हूं कि गुरु साहब की कितनी कृपा है। वो कृपा नहीं बोलते, वो कृपा बोलते हैं, कितनी कृपा है मेरे पे। दैट आई अंडरस्टूड, यार दिस मैन, इसको लोग गलत समझ रहे हैं, इसके बारे में लोग नहीं समझ पा रहे, इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग की किसी के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कांग्रेस का एक नैरेटिव है। अब कांग्रेस, गांधी परिवार किसी भी सूरत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उनका एक ही सपना है कि हमारा बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए। मैं उनकी एक बात मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं उस पर मोदी जी को बताता हूं। उनका सपना ऐसा है, गांव के अंदर एक बाप और बेटा बैठे कि बाप सरपंच बन जाए, तो बेटे ने कहा कैसे बन सकते हो, तो बाप ने कहा कागज पेन पकड़, मैं तुझे बताता हूं हम क्या क्या करेंगे। तो उसने बोला ऐसा है बेटा, एक ये गांव का जो सरपंच है ना नरेंद्र, अगर ये मर जाए तो मैं सरपंच बन सकता हूं। तो बेटे ने उसका नाम लिखा कि अच्छा। तो फिर उसने कहा कि बेटे ने कहा एक सुरेंद्र भी तो है जो पहले सरपंच रहा। हाँ, कह रहा है कि वो सुरेंद्र और मर जाए तो मैं सरपंच बन सकता हूं। तो बेटे ने कहा जी वो विकास चौधरी का भी बहुत दम है, वो मेंबर भी रहा। हाँ, कह रहा एक विकास चौधरी मर जाए तो मैं बन सकता हूं। तो बेटे ने कॉपी में लिखा बापू जी मैं बताता हूं आप सरपंच। तो बेटे ने लिखा बापू मैं एक बात समझ गया, सारा गांव मर जाए ना तो सरपंच नहीं बन सकता। राहुल गांधी जी का सपना नहीं पूरा हो सकता, कभी नहीं हो सकेगा। ये बेचारा, वो मैं कहना नहीं चाहता, मैं बड़ा सम्मान राहुल जी का करते हुए बोलना चाहता हूं। एक बच्चा घर भागा आया और दौड़ता आ रहा, मम्मी मैं जीत गया, मम्मी मैं जीत गया। तो माँ ने पूछा क्या बेटा जीता, तो उसने बताया मम्मी मैं आज रेस में दूसरे नंबर पे आया। तो माँ ने फटाफट उसको शक्कर खिलाई, दही लाया, तो पिता आ गया। बापू ने आते पूछा क्या हुआ, कह रहा बेटा दूसरे नंबर पे आया। बाप को तो पता था अपने उसके बच्चे की करतूतें की। तो बोला दौड़ने वाले कितने लोग थे, बोला 2। बाप ने 2 कान पे थप्पड़ मारे, कहता तू खड़ा रहता ना तो भी दूसरे पे आता, भागा क्यों, तू खड़ा था तो भी। राहुल गांधी बेचारा वो चीज है, वो बच्चा है, ये बेचारा जब 2 लोग दौड़ रहे होते हैं ना, ये बेचारा तब भी तीसरे पे आता है। ये 2 लोगों की दौड़ में भी दूसरे पे नहीं आ सकता। इसलिए इन्होंने ये नैरेटिव बनाना शुरू किया। इनको लगा कि कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ऐसी है, अगर ये फोर्सफुली हमारे साथ लग जाएगी। इन्होंने एक नैरेटिव बनाया प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री एंटी सिख है, एंटी सिख है। हाँ भाई, जो सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल में डाले वो वाकई एंटी सिख ही तो होगा, तुम्हारे कातलों को जेल में डालने वाला। मोदी जी का मैं 2-3 आपको एक्सपीरियंस बताता हूं, और ये जनतक है, मैं नहीं अकेला कह रहा। प्रधानमंत्री जी बादल साहब के घर पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे आ गए और अचानक उनको कह दिया गया कि आप गुरु नानक देव जी पे बोलो। प्रधानमंत्री सेड कि मैं तो कोई, मेरे को बोलना भी है, प्रिपेयर्ड नहीं है। प्रिपेयर्ड इसलिए कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई ऐसा स्टेज नहीं था। हाँ बोलना भी है तो बोल दिया। आप उनका वो 15 मिनट का भाषण सुनेंगे, एड्रेस सुनेंगे गुरु नानक देव जी की, तो आप समझेंगे उनको इतनी सिखिज्म की नॉलेज है। एक गुरुद्वारे का ग्रंथी ऐसी बातें बता सकता है जो मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के बिना कहीं पढ़े, बिना कहीं देखे बोल दिया। ऐसे ही मैं एक बार जब अपने सिख लोगों को लेके उनसे घर मिलने गया तो ऐसी बातचीत शुरू हो गई, पंजाब को लेके, धर्म को लेके। सारे मेरे साथ, देखिए रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज शस्तानी जी थे, चीफ वहाँ के पंजाब सिंध बैंक के रिटायर्ड CMD थे। वो चक्के रह गए।
जैसे मोदी जी ने सिखिज्म के ऊपर, पंजाब के ऊपर, कैसे पंजाब पे धाड़वियों ने हमले किए, किस तरह से पंजाब ने भारत की रक्षा की, किस तरह से आर्मी के कितने जवान अब तक मारे गए, किस किस बॉर्डर पे टेक्निकली भारत की सरकार सिखों को क्यों खास तौर पर रखती थी, क्या उनका वजूद था, किस किस धाड़वी ने जब हमला किया तो उसको कैसे कैसे कौन कौन से सिख ने उसका जवाब दिया, और तो और कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ कौन कौन से सिख लड़े और किस किस धाड़वी को खत्म किया। सारे हैरान रह गए यार, किसी हिस्ट्री के स्टूडेंट ने जिसने खाली सिखिज्म पे किया उसको भी इतना नहीं पता हो सकता। उनका एक नैरेटिव जो पेश किया गया ना कम्युनिटी में, मैं मानता हूं कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये हुआ है, मोदी जी के पास ऐसी कोई टीम नहीं थी, रिप्रेजेंटेशन कम थी। हाँ, मोदी जी जो रिप्रेजेंटेशन में ऐसी कोई टीम मेंबर नहीं था जो मोदी जी के विजन को अपनी कम्युनिटी में प्रेजेंट कर सकता हो, उनके विजन को बता सकता हो। और मुझे लगता है कि किसी ने ऐसी चिंता भी नहीं की कि हमें बतानी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का जो काम का दायरा है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो हमारी टीम के लोग हैं उनका ये ज्यादा काम था, वो वहां पे मिस कर गए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब लोग इतना समझने लगे हैं कि लोग, मैं आज आपके चैनल पर कहना, अगर मुझे कोई गलत साबित कर दे, आप देश भर के सिख, कोई आपके पॉडकास्ट पे आके, कोई आपके चैनल पे आके, देश भर का एक भी सिख ये नहीं कहेगा कि मैं मोदी का विरोध करता हूं। मूड हैज चेंज्ड, नहीं कहेगा, क्योंकि उनको पता है जो मोदी ने किया है कोई नहीं सिखों के लिए कर सकता। दैट इज द रीजन। Okay, you were talking about the diaspora and you were talking about how strong the Sikh diaspora is in the world. What is the best way to address them and pacify them or collaborate with them for the Modi government? So there are two important aspects which I feel. One thing is that our community has a very strong communication. Okay. We have our own channel, TV channels. Network is strong. Sikh community has their own video channels. So these are two most important things which otherwise government of India or BJP has altogether neglected. I don't believe that our Sikh leaders must be even aware that how many channels Sikh own in America, Canada, New York, Australia, 100 of TV channels. We got a biggest TV channel network. We got a biggest radio channel network. So the propaganda served on TV channels is a propaganda served by Congress. They are heavily served by them. Okay. So one thing is that we need to speak to those people also. And second is that we should invite those people and have an open debate with them. Rather than few BJP peoples which I have seen in last couple of years are talking on national channels also and accusing them. You need to understand their point of view also. You're alienating them then, that's why. Yeah, you are alienating them and you need to understand their point of view also. They might have a valid point of view. और जब आप उनको जाके अपना बताएंगे तो then कम्युनिकेशन से आप उनको समझा पाएंगे कि नहीं। तो अगर हम केवल उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद उनको गलत साबित कर देंगे तो फिर तो ये क्लैरिटी कभी आएगी नहीं। डायस्पोरा में 2-3% ऐसे लोग हैं जो हमारे वहां मैटर करते हैं। उनमें से 100-200 लोग ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, उनका एजेंडा टोटल नहीं कर सकते, उनको नहीं, उनका एजेंडा डिफरेंट है। okay. उनका एजेंडा पे मैं जाना नहीं चाहता, उनका एजेंडा डिफरेंट है। बाकी वो 2-3% में जो लोग हैं वो केवल इसलिए हैं क्योंकि वो मिसकम्युनिकेटेड हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया, उनसे कभी बातचीत नहीं की गई, उनको बताया ही नहीं गया। अब मान लीजिए अब हमारा कनाडा में कोई सिख विरोध कर रहा है, हम उसको जा कहते हैं मोदी जी आपसे बात करके पूछना चाहते हैं भाई साहब किस चीज़ का विरोध है। वो डेफिनेटली हमसे बात करेगा और जब हम उसको बताएंगे तो कहेगा सर नहीं मैं विरोध नहीं करता, बात आपकी ठीक है। और मैंने ये देखा है, मैं देश भर में गया हूँ, मैं विदेशों में बहुत जाता हूँ, जिनसे जाके हमने कम्युनिकेट करके समझाया है वो मान गए हैं, लेकिन हमारे में कमी है, मुझे ये मानना है। So you are saying the ones that have the anti whatever national agenda or other agenda, there's no point addressing them. उनको तो कुछ एड्रेस करके आप नहीं कर सकते। उनका एजेंडा पेड एजेंडा है। उनका एजेंडा ये जो मैं मानता हूँ पूरे देश के, पूरी दुनिया में ऐसे अगर मैं मेरे टिप्स पे लोग हैं 60-70 को बाई नेम मैं बता सकता हूँ, और ऐसे मेरा मानना 200-300 लोग हैं पूरे दुनिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड सब मिला के 200-300 लोग हैं मैक्सिमम ऐसे जिनका पेड एजेंडा है, जिनको मैं वर्ड यूज करता हूं, जिनको माध्यम को ISI तक भी पैसा जाता है, उनमें से चंद लोगों को। बाकी जो लोग हैं जो हमारे खिलाफ आज बोल रहे हैं उनका कोई एजेंडा पेड नहीं है। उनके मन में एक्चुअल में गुस्सा है, पर गुस्सा किस चीज का है वो हम नहीं निकाल पाए।
हम नहीं उनको कन्वे कर पाए। जब हम उनको कन्वे करते हैं, मेरी फोन पे बात होती है, मैं बहुत रेडियो पे जाके टॉक करता हूं। मैं रात को ऑलमोस्ट एवरी डे कनाडा अमेरिका में रेडियो टॉक्स करता हूं। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं होता। कह रहे यार हम ये बात को मानते हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, उनके ग्रीवेंसेस सुनने चाहिए। कई ग्रीवेंसेस उनके जेन्युइन है। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात को समाप्त करूं। ग्रीवेंस एक छोटा सा क्या है, मान लीजिए अमेरिका कनाडा में मेरा सिख रहता है। अब एम्बेसी आदमी को लगा इसने विरोध किया है, उसने ये नहीं समझा कि इसने विरोध क्यों किया है, उसने उसको कह दिया तेरे को वीजा नहीं देंगे हम। उसको परेशान किया, वो 2 महीने से चक्कर काट रहा है, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ये सरकार तक तो बात आती नहीं है। हमने मोदी जी को जिसका नाम भेजिया, अगले दिन उसको क्लैरिफाई हो जाए, अगले दिन उसको क्लियर करके वापस लाते हैं। अभी आपको अगर याद हो, हमारे एक बहुत बड़े सिख हैं अमेरिका के, उनको रोक लिया गया और इंडिया से वापस भेज दिया गया। जैसे ही मोदी जी को पता चला, भाई बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बकायदा गुजरात के प्रोग्राम में उनसे माफी मांगी चलते हुए। आप वो वीडियो देखना भाई, वो आपको देखा जाए, अरे भाई वो गलती हो गई थी, मैं माफी मांगता हूँ, ये गलत हो गया था। दिस इज दी पर्सन नरेंद्र मोदी। ये है नरेंद्र मोदी जो एक साधारण सिख से चलते हुए प्रोग्राम में देख के माफी मांग सकता है, भैया वो गलती हो गई थी, मुझे बहुत। तो हम उसको समझ नहीं पा रहे, और अगर समझ नहीं पा रहे हम अगर समझ रहे हैं, हम आगे समझा नहीं पा रहे। कांग्रेस की मैं आपको एक जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस किसी वक्त हिमालय जितनी बड़ी पार्टी थी, हिमालय जितनी 425 सीटें आती थी। आज वो आपकी स्टेट्समैन बिल्डिंग जितनी भी नहीं रहेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी का मिशन है कि राहुल गांधी के एक फेल्ड मिसाइल को 21 बार लॉन्च करने के बाद दोबारा लॉन्च करना है। आप भी देखिए, जो लॉन्चिंग पैड होता है ना, वो बेचारा कमजोर होकर एक दिन टूट जाता है। ये कांग्रेस उस लॉन्चिंग पैड पे उस चीज को लॉन्च करना चाहती है जो कभी लॉन्च हो ही नहीं सकती। उसको लॉन्च करते 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 कांग्रेस तबाह होगी। अब तो कांग्रेस के वर्करों का ये हाल है, अब तो वो बेचारे यही शुक्र करते हैं कि राहुल जी ने शादी नहीं की, वरना कहते हैं यार इसके वाले के बाद अगले लॉन्च को जो लॉन्चिंग पैड पे लाना पड़ता, फिर तुम बिल्कुल बर्बाद हो जाते हो। कह रहे हैं चल शुक्र है 5 साल में 10 साल में जान छूट ही जाएगी, वरना तो इनसे जान ही छूटनी थी। अब गांधी परिवार से पूछो, कांग्रेस से पूछो, जो बड़े नेता बेचारे उनको खुश करने में लगे हैं। राहुल गांधी नौजवान है, नौजवान को मौका मिलना चाहिए। नौजवान, अरे यार 55 साल का आदमी नौजवान होता है? उसने शादी नहीं की तो क्या देश के लोगों का कसूर है? भाई वो नौजवान नहीं है, वो एक 55 साल का आदमी है जो अपने फैगेंड में है। 18 साल का आदमी कामयाब होता है, नहीं होता तो 21 साल में हो जाता है, 24 साल में हो जाता है। जो 25 साल में कामयाब नहीं होता वो बेचारा फेल माना जाता है। उसकी पत्नी भी मान लेती है कि ये फेल है, अब उसके घर वाले मान लेते हैं ये फेल है, ये नहीं कामयाब हो सकता। अब 55 साल की उम्र हो गई है, अभी भी वो ये कहते हैं कि कामयाब होगा कामयाब होगा, ये नहीं प्रोडक्ट कामयाब हो सकता। कांग्रेस बर्बाद होगी उसको कामयाब करते। इसलिए इस बार भागा पहले वो यूपी से, वहां से भागकर गया केरला, केरला से भागकर फिर यूपी आया, अपने खानदान की एक सीट बर्बाद कर दी, अब वायनाड बर्बाद कर दिया। अब ये किसी भी सूरत में नहीं जीत सकते। ये बेचारा जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं संभाल सकता, उससे देश संभालने की कामना करना कांग्रेस के लोगों की गलती है, इसमें राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं। थैंक यू सिरसा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू द स्टेट्समैन। एंड आई होप कि जब रिजल्ट आएगा तो जो हम प्रेडिक्शन करके जा रहे हैं वो आप प्रेडिक्शन जरूर हमारी उस दिन चलाएंगे। हम पिछली बार से जहां ज़्यादा सीटें भी जीत के आएंगे और वहीं सबसे बड़े मार्जिन के साथ देश में हिस्टोरिकल हम सरकार बनाएंगे। ये हमारी जरूर चला देना जब हमारा ये रिजल्ट आए। धन्यवाद। If you liked the episode, don't forget to share it and also like, share and subscribe to all our social media handles. They're all listed below. Thank you.